in communication और हम दोनों ने MBA marketing भी की है. She's also worked in corporate sector after her campus placement. She worked with an MNC CBRE for almost a year, but she took a major decision of switching from real estate to music. मतलब इन्होंने रिस्क जो है लाइफ में ऐसे लिए हैं जैसे क्रिस गेल छक्के मारने पे लेते हैं. She entered the entertainment industry as a TV host, VJ, singer, just given hit जो रिलीज किए गए हैं T Series, Sony Music, Z Music, Times Music में. And of course इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ग्लोबली काम किया है. ONGC, BSE, Rotary Club, बहुत सारे हैं मेरे सांस फूल गई इतने सारे ब्रांड्स का नाम लेके. Ladies and gentlemen, please give it up for this lovely, gorgeous lady, Anuja Sahai. Congratulations, Anuja. So good to see you. The star of the night for sure. Anuja, so good to see you. And बहुत बहुत thank you and happy Dhanteras. और गोल्ड के सिक्के तो आज आपने अपनी ड्रेस में कैरी किए. Yes, of course. And of course, the main lead of this song, opposite Anuja Sahai, Joginder. Ladies and gentlemen, give it up for Joginder Boken. जोरदार तालियां हो जाए. And साथ ही मैं बताना चाहूँगा हमारे कोरियोग्राफर जिन्होंने बहुत मेहनत की है, यज्ञेश मारू को जोरदार तालियां हो जाएं. जोरदार तालियां यार. मतलब म्यूजिक वीडियो हो, डांस हो, जोगिंदर भाई से डांस करवाना हो तो ऐसे कोरियोग्राफर बहुत जरूरी होते हैं. मगर मैं उससे पहले हम आगे बातचीत करें, मैं चाहूँगा उमेश के बारे में बताना, जो सिंगर, परफॉर्मर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, वोकल ट्रेनर भी. बहुत बहुत ही मल्टी टैलेंटेड टीम है ये. And he's also given hits which are released by T Series, Sony Music, Z Music. So हर बड़े म्यूजिक लेबल में इन्होंने काम किया है. And of course he owns a brand name Rutba and taking care of this label Kamakhya Music also. So जो भी aspiring talent है, जो singer, composer, जो actor बनना चाहते हैं, अगर आप कामाख्या म्यूजिक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उमेश is definitely the right person you got to connect with. And together as a brand they have performed globally for various brands like ONGC, BSE, Rotary Club, like all the brands Anuja has also worked with. And he has given hits like Raja Ji, Bitiya Hove, तलाश खुद की, बीरा, मीरा, मुंडा, और ऑफ कोर्स अब यहाँ पे बजवा शहनाई भी सुपर हिट होगा, राइट? क्या बात है, वेरी टैलेंटेड टीम. तो जोरदार तालियां फॉर द कास्ट एंड क्रू, द बैकबोन ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो बजवा शहनाई. लेडीज एंड जेंटलमैन, सो म्यूजिक वीडियो आया बजवा शहनाई, उसमें ऐसे से धुरंधर जो आपने लिए हैं, अनुजा सहाय जो एक्टर, सिंगर, कंपोजर, जोगिंदर, दिस मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, उमेश, एंड ऑफ कोर्स द कोरियोग्राफर. तो ये मैजिक क्रिएट करने से पहले आपके माइंड में मैजिक क्रिएट हुआ होगा. सो हाउ डिड दिस हैपन एंड हाउ फाइनली यू केम अप विद दिस आइडिया, लेट्स डू बजवा शहनाई? It is a very good question. But first of all, let me wish all of you a very happy Dhanteras, and for the coming Diwali days, wish you very happy Diwali to you and your family. You know, Abhinandan, it is such a beautiful moment for us, for Kamakhya Music, because this auspicious day of Mata Rani, we have been able to launch a video of another lovely lady who is not short of any Mata Rani also, because she does a lot of Mata Rani songs also. Jagat. She does a lot of musics which are uncompared and unheard of, and I love listening to her, and I'm sure everybody will also love. So when I saw Umesh and Anuja singing at many places, I was so impressed. I was so impressed with their talents, with their dedication, with their hard work, that there is no other second thoughts but that to launch them. And it is a pleasure of Kamakhya Music to launch the first music channel with these talented young lads, which are going to go a very long way by school. And I wish you all good luck. Wow, wow. When you have such a great mentor, I'm sure that's the reason, you create magic in the music video. On that note, Anuja, एक सवाल जो हम सबके माइंड में होगा. सबसे पहले मेरा सवाल भी आपसे यही था Anuja. Of course, the face, the beauty and glamour of the night, Anuja Sahai. Anuja, so you were casted as actress of the song या फिर singer as a song? Okay, no, so I was definitely casted. I was taken as a singer of the song, for which I'm really happy, because after listening to the song, I was really not sure whether I'll be given the song also or not. So if I really
wanted to sing the song, but I'm sure there would have been other options, other singers, other choices, preferences. But I was really happy when it came to me, and I was like, wow, nothing to it. I have to just kill it now. Wow, wow. So you were casted as a singer and then the actress. Yes. So मतलब बहुत हद तक श्रेय जो है उमेश भाई को जाता है, जिन्होंने आपको सिंगर का तो जाता है कम से कम, because एक्ट्रेस का तो हमने उसमें इतना एक्सप्रेशन देके गाया कि मैंने कहा कि इतना अच्छा एक्सप्रेशन मैं स्टूडियो में दे रही हूँ, so I'll give it on camera also, so let me do the acting also. Wow, amazing, you know. So वो जो एक छोटी सी उम्मीद थी, किरण थी, वो उमेश भाई ने जगाई. So उमेश, what made you, cast Anuja as the singer of this song? What made you feel कि यार अनुजा ये बहुत अच्छा कर सकती है? Because you have such a bank, big bank of all the singers out there. So what happened? सबसे पहले तो a very very happy Dhanteras to all of you presenting over here. So coming to your question, Abhinandan, I just want to tell you that when you are a composer, you get to meet so many singers with different kind of a voice. Nowadays what is happening ki the trend is, if you want a specific kind of a voice, you work with that voice. Right. Nowadays it is happening. Now the trend is there ki if you want a Sufi kind of a singer, you get to choose that singer. Right. Now sometimes, most of the times, what is happening, there are no singers of, like they can produce any kind of a voice. There are very less singers. I find Anuja that kind of a singer. कि ये सूफी भी गा लेती है, मैं भजन भी गवा लेता हूँ. So now जब मैंने ये गाना सुना, तो मेरे को लगता है कि मैंने 2 लोगों को ट्राई किया था, but I was not satisfied. So I decided कि यार let's pitch this song. And जहाँ मैंने pitch किया, sir was very kind that कि यार करते हैं ऐसा कुछ. और he liked the song, he liked the vibe, and now we are standing over here. क्या बात है. I think ये सर का support definitely है, that entire team and all of us are right here because of these lovely people. उमेश ने जिस तरह से story narrate की है ना, मुझे लगता है कि म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही, ये डायरेक्टर बहुत जल्दी बनने वाला है. जिस तरीके से सस्पेंस थ्रिल के साथ आपने ये स्टोरी एक्सप्लेन की है, थोड़ा बहुत होना चाहिए. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा है आप में ये टैलेंट. ऑन दैट नोट, जोगिंदर, द हीरो ऑफ द सॉन्ग, जोगी पाजी, जोगी प्यार से जनता बोल सकती है आपको, आपके फैंस? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं. जोगी बोलते हैं. सी लड़कियां जोगी होने वाली हैं आपके प्यार में. इफ दैट व्हाट्स सो जोगी, आपको अनुजा ने कितना नचवाया सॉन्ग में? यार बहुत नचवा दिया, बहुत नचवाया, इधर उधर भागने लगा. बहुत नचवाया. नाचना नहीं होगा मैंने कहा. बड़ा मजा आया, अच्छे से आपस में अच्छा कोऑर्डिनेट किया. बहुत लाइक जो भी कुछ हो. तो जोगी पाजी, मुझे ये जानना है कि आपको आखिर जो स्टोरी है बिहाइंड कि आपको इस गाने में कास्ट कैसे किया गया, कब कॉल आया, हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन बजुआ शहनाई? मैं बॉम्बे में ही था, तो एकदम सडनली कॉल आते हैं रात को 11 बजे मुझे कि हाँ डायरेक्टर सर का, सतेंद्र चौहान जी का, कि आपको ऐसे जोधपुर आना है. क्या हुआ? मैं सडनली रात को ही गाड़ी उठाई और सीधा जोधपुर, बाय ड्राइविंग सीधा. लोकेशन भी नहीं पूछी, सीधे जोधपुर जाके अरे भाई ये लोकेशन तो मंगवा दो. जोधपुर जाके गाड़ी रुकी. सीधा जोधपुर ही रुकी गाड़ी. क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तालियां मार दीजिए ऑफ कोर्स अगर आपको मजा आया सुन के. हमारे कोरियोग्राफर साहब योगेश मारू जी, योगेश जी, इन्होंने यज्ञेश मारू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी. यज्ञेश मारू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जोगी कह रहे हैं कि अनुजा ने नचवाया, अनुजा कह रही है नचवाया, आपको किसने नचवाया ज़्यादा? आप तो खुद ही लोगों को. मुझे सबने नचवाया. नहीं, इट वॉज फन वर्किंग विद देम. उमेश भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, यज्ञेश आजा भाई एक सॉन्ग करना है. मैं पहुंच गया एंड वी हैड लॉट ऑफ फन. बहुत सारे रिहर्सल्स हुई बिफोर गोइंग ऑन द फ्लोर. उमेश भाई ने भी करवाई रिहर्सल्स? उमेश ने कोई रिहर्सल नहीं करवाया. उसने नो द काइंड ऑफ ट्रस्ट ही शोड भाई ये सॉन्ग है, यू थिंक अ बेटर स्टेप, यू थिंक द बेस्ट वन व्हाट यू कैन डू, एंड पूरा मुझ पे छोड़ दिया. एंड देन
working out ये step नहीं वो step नहीं. Right. We kept working and we had fun while rehearsals also. The mental rehearsal is also very important, right? So on that note, उमेश, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आपने गाने के लिरिक्स भी खुद लिखे हैं, तो आपने धुन पहले बनाई थी या लिरिक्स पहले बनाए थे और फिर धुन बनाई उस पे? अभिनंदन, ऐसा होता है कि कंपोजर्स जितने भी हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कंपोज कर लेते हैं कई बार धुन, वाइस वर्सा कई बार लिरिक्स के ऊपर हमको धुन बनानी पड़ती है. बट दिस टाइम अबाउट योर क्वेश्चन, इसमें मैंने धुन पहले बनाई थी. वाह. और धुन बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने गाना लिखा. एंड somehow एक क्या होता है ना कि when you are sitting on the composition, so you enjoy your groove. Right. You are the first critic Right. on that song. I understand that. So that happened with me. In this Bajwash and I clicked. And if in the Antara you will listen, Yeah. abhi after this launch, जब song बजेगा तो Of course. you'll get the lyrics and it is like superb. I find it very much like I'm sure. जिस तरह से इन्होंने स्टोरी नरेट की है, लिरिक्स आप समझ सकते हैं कितने अच्छे होंगे. एंड ऑफ कोर्स शूट करते हुए हमारे डायरेक्टर साहब सत्येंद्र चौहान जी नहीं है, मगर हम अनुजा से बात जानेंगे बिकॉज जयपुर में शूट हुआ है, राजस्थान की हवेली में हुआ है. आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा डांस करते हुए इतनी धूप में, बिकॉज बहुत बुरी हालत होती है. तो हैट्स ऑफ टू सच लेडीज, मेकअप के साथ, हैवी कॉस्ट्यूम के साथ. सो गिव अस सम एनेक्डोट, कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस और कितनी बार मेकअप आपको बार-बार करना पड़ा या टचअप से काम चल गया? तो अभी obviously it was not like how it is right now. मस्त AC है, it's like very chilled and comfortable, but it was just not the same. हवेली में, and that was also in the time of June. बाप रे. So now you can imagine that how severe it was. और definitely टचअप एक एक्सटेंट तक हो सकता है, उसके बाद टचअप भी गिव अप कर देता है कि I can't handle it anymore, and then again the makeup artist, it's a tough time for them. Definitely हम लोग के लिए तो है ही, because we were dancing, we were putting our blood, our sweat into it. We were trying to satisfy the choreographers with our steps, क्योंकि उनको तो ये फिनिश प्रोफेशन, ये मैंने कहा धूप लग रही है और करो स्टेप करो how many times. But anyways, at the end of the day, it's about the product, it's about the result, how well it's executed, how well it's turned out to be. Right. So उसके बाद वो गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, and whatever happens for good. Yeah, I'm sure very interesting and hats off to this young lady. इतनी भारी जून की गर्मी में इतने हैवी कॉस्ट्यूम के साथ आपने डांस किया जो जल्दी हम सब देखने वाले हैं, और स्टेप्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं ना. हाँ, ओके फ्रॉम हिम. अच्छा, बाय द वे लोकेशन बहुत अच्छी थी. इफ यू कुड जस्ट शेयर अबाउट द लोकेशन, व्हाट वाज इट लाइक, कहाँ शूट किया था आपने? Yes, location was certainly very beautiful. In fact, I still remember Satyendra ji telling me, जब हम घुसे उस लोकेशन में, एक सेकंड के लिए हम गाना तो भूल गए. हम गाना भूल गए, and sir was telling me कि यहाँ पर कुछ हम ऐसी उनकी नई कहानी आने लग गई दिमाग में कि let's shoot something here, ऐसा करते हैं. Which I was like, yeah, definitely, sooner or later we must do that. And I really from the bottom of my heart want to thank Hari Singh Rathore for Right. that beautiful location, because of which we could deliver the result which was required for that particular song. And also ठाकुर फतेह सिंह जी जो आप बता रही थी, हाँ जी. पर्वत. Thakur Fateh Singh ji bhi, because they were quite supportive, and though they were enjoying, उनको तो आदत है ना वहाँ की गर्मी की, तो Right. उनको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. But they were very supportive. वेरी नाइस यार. आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा है. और आखिर द टाइम व्हेन मेजर साहब, कामाख्या, द बैकबोन ऑफ कामाख्या म्यूजिक ऑफ कोर्स, व्हेन दे शो अ ट्रस्ट इन यू कि आपको ये किरदार निभाना है और आप पे डबल जिम्मेदारी है, बिकॉज आप टीम के कैप्टन भी हैं और ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, यानी कि सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और खूबसूरत लगना भी है, डांस स्टेप्स भी करने हैं. सो ये जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, थोड़ा सा आप हम सबको बताएं. और एस्पायरिंग एक्टर्स भी, आई एम श्योर सिंगर्स भी इंस्पायर हो गए मुझे आपसे. जिम्मेदारी पता नहीं कैसे निभाई जाती. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक आई डोंट टेक इट एज अ टास्क. To be very honest, I'm so mad about it. I'm so much in love with it. I'm so passionate about it कि मुझे I don't have to think twice before trying to do
something. I don't try to do it. It comes naturally to me. So when anything comes naturally to you, things are very beautiful. They are very different. And as you rightly said, that Major Sanjay, who is the backbone, who has shown that confidence, that trust, at the end of the day, for any artist or for anyone, that's the key. That is something which is very, very important, very, very crucial, that, you know, because now you have responsibility on your head. You can't just do anything just for the heck of it. Someone's showing that, you know, that determination, that confidence, that trust in you, और उसके बाद आपको लगता है अभी तो चकते पकते, अभी तो ऐसे करना है बिल्कुल बढ़िया वाला. So it's like that confidence helps you do everything. Yes, and I think it's pretty much evident from your energy, you know, Anuja, that you have today, the happiness, the glow, the natural glow जो आपको दिख रहा है. I think it's all because, you know, when you've done your job completely well, it's pretty much evident, and I think you've outperformed in the music video. इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जोगी भाई और मेरे कोरियोग्राफर भाई सोच रहे हैं इतना पैशन है, एक्टिंग कर ली, सिंगिंग कर ली, ऐसा ना हो कि मेल का भी कर ले और कोरियोग्राफर का भी काम कर ले अगले म्यूजिक वीडियो में. नहीं, इतना ना हो पाएगा. इतना ना हो पाएगा. But yeah, I think every singer is an actor. Yeah. I don't think, I mean, मेरे को नहीं लगता सिंगर और एक्टर को डिफरेंशिएट करना चाहिए, because on mic we give our expressions, right? उसी को तो सामने देना है. So ये I आपके think लिए it's सिंपल है ना, दुनिया के लिए सिंपल नहीं है ये आपके लिए सिंपल है. अब आइंस्टाइन के तो आसान था ना सॉल्व करना, इज इक्वल टू mc² क्या है, मगर जनरेशंस भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाई उसको. बट कमेंडेबल जॉब, जोरदार तालियां फॉर दिस एंटायर कास्ट एंड क्रू जिनसे हमने बहुत सारी बातें की. Once again, thanks to my media fraternity. Despite Dhanteras and Diwali we here, but the time has now come because now we have the unveiled boxes, launch boxes, because now we are going to show you the music video of Bajwashanai. But before that, we have the launch boxes, and we start with the launch. Can we have the launch boxes, please? and क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हुई है, थोड़ा सा अगर गाने के बारे में बताएं. जो गाने को रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी तो ऑडियो रिलीज हुआ था, वीडियो तो आज लॉन्च हुआ है, बट उस ऑडियो को जो प्यार मिला, आई मीन ऑब्वियसली अपना काम हर एक को पसंद होता है, बट मैंने भी बहुत गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना वाकई में स्पेशल था. एज एन आर्टिस्ट सबसे पहले खुद को पता चल जाता है कि गाने का क्या लेवल है और किस तरह का उसका आउटपुट होने वाला है. So again, I would thank Umesh Giri for such amazing creation of this song, and I'm lucky that I could sing that song. और मुझे खुशी है because इस गाने को अवार्ड भी मिल गया. अब तो इसके ऑडियो को अवार्ड मिल गया, तो मुझे तो this is a very special award for me. ऑल्सो जो आपने गाना भी गाया है, गाने में पिक्चर भी हुई है, इसका आइडिया था कि पिक्चर भी होना चाहिए क्योंकि आवाज तो लोगों ने पसंद की है, लेकिन अगर उस बारे में बताएं कि किसका आइडिया था. ये कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का आइडिया था, बट एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन मैंने इसकी फाइनल डबिंग की थी,
So because obviously you have to throw some sort of expression. जब आप गा रहे हो तो सिर्फ आप मुंह से नहीं गा सकते, आप मन से, दिल से और फेशियल एक्सप्रेशन देकर गाते हो, and then only you can justify to the song. तो जब वो हो रहा था और स्टूडियो में सब बैठे थे, क्रिएटर्स ऑफ द सॉन्ग, एवरीवन वाज देयर, तो शायद उनको वो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जो मसाला, जो तड़का उनको इस गाने के लिए चाहिए होगा. सो देन दे सेड कि अरे यार, नथिंग डूइंग, यू विल जस्टिफाई विद द सॉन्ग, यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई विद द सॉन्ग. सो आई वाज लाइक ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू कर ली थी मैं. आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना करने का, और अगर मतलब डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप काम करते हैं और काम का फल यदि बहुत अच्छा होना तो बड़ा मजा आता है. बोलते हैं कर्म करो, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा ना करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल करो यदि काम आपका अच्छा है तो, क्योंकि बनता है आपका करना. और इस काम में जब मैं ये कर रहा था उस समय आई फेल्ट दैट द वाइब, नो, यू कनेक्ट विद द वाइब. तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो और समझ में आता है चार ऐसे लोगों को जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी से नहीं है, और वो जब लोग पसंद करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है. क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, सामने वाले को वो बच्चा मेरा कैसा लग रहा है वो मैटर करता है. तो जब वो पर्सपेक्टिव से मैंने गाना बनाया तो अच्छा रिस्पांस मिला. एंड बस आप देख ही रहे हैं, आप लोग आ गए हैं हमारा गाना देखने के लिए. ऑल्सो आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरी टीम है उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर लिरिक्स के बारे में बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस गाने के. यार मैं आपको बताऊं सर, गाने के लिए जब हम गाना बनाने बैठते हैं ना, मूड से बैठते हैं कि अब हमको गाना बनाना है, तब गाना नहीं बनता. जब आप करने के मूड से बैठते हो ना, तब गाना बना ही नहीं सकते आप. ये एक रैंडम प्रोसेस है. अब उस दिन मैं बैठा था, कीज बजा रहा था, और बजाते बजाते एक धुन आई और धुन पे मैंने लिख दिया. ये विद इन हाफ एन आवर में बनाया हुआ गाना है. म्यूजिक मैंने एक दिन में बना दिया था, मिक्सिंग मास्टरिंग के प्रोसेस 2-3 दिन में लगे. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन, यू आस्क्ड मी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस. सी, आई बिलीव कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो हमेशा साथ में आते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं. सो जब मैं अनुजा के साथ एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्क्रैचेस किए हैं, कुछ गाने हमारे रिलीज भी हैं, और मैं अदर लोगों के साथ काम करता हूँ, तो आपको ये समझ में आता है कि आर्टिस्ट का पोटेंशियल क्या है. और जब पोटेंशियल पता चलता है तो आप डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहेंगे. मैंने अगेन वही वाइब वाली बात होगी कि सामने कैमरे पे आने के लिए या उसका कितना वो कला में अपनी धनी है. तो ये सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब गंधर्व लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है. ये अपने काम को जानते हैं, इसलिए मैंने इनके साथ काम करना बहुत मजा आया, क्योंकि दे वर वेरी सपोर्टिव. एंड किसी ने भी वेस्ट नहीं किया टाइम. शूट में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है टाइम, की टेक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पर बहुत हमने गाना आधे दिन में शूट कर लिया और बहुत मजेदार शूट किया, और बहुत लोकेशन के फायदे हुए, लोकेशन में हमने मजे किए, बहुत सारी चीजें हुई. तो आई लव वर्किंग विद देम. ऑल्सो सर आपसे जानना चाहूंगा, गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्या कहना चाहेंगे एज अ व्यूअर, अगर आप बताएं गाने के बारे में कि कैसा लगा आपको ये गाना, क्या. ये सुन के तो खुशी बहुत होती है कि लोगों को पसंद आया. उससे ज़्यादा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है दोनों पर. अनुजा और उमेश दोनों इतने बेहतरीन हार्ड वर्किंग पीपल है कि उनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता. आई हैव नेवर सीन सच डेडिकेटेड पीपल हु हैव डन एंड टैलेंटेड पीपल, एंड आई थिंक सो दे हैव अ ग्रेट फ्यूचर हेड, एंड ऑलवेज विश देम good luck. Thank and you, I sir. Thank hope I get more opportunities to have more of their songs released very soon in the coming days. Thank you, sir. आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो केमिस्ट्री हमने देखा गाने में बहुत अच्छी लग रही है अनुजा के साथ, तो थोड़ा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या प्रिपरेशन थी गाने को लेकर. स्पेशली गाने को लेकर बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का. मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सिंगर है. एज एन एक्टर एक्साइटेड, नर्वस, क्या कहना चाहेंगे. नो बात सीधे, नो बकवास. सीधा to the point. Yeah, sorry, please continue. सो पहले एक्साइटेड थे, नर्वस थे, और अब जब इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है एज एन एक्टर, क्या फील. बड़ा अच्छी फीलिंग है. एज एन एक्टर बड़ा नर्वस तो रहता ही है. नया मोमेंट है, नया मोमेंट है, तो नर्वसनेस तो रहती है थोड़ी बहुत. बाकी बड़ा मजा आया, के साथ काम करने में बड़ा.
सर आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों की केमिस्ट्री गाने में स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स है। अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या तैयारियां थी और कैसा एक्सपीरियंस था आपको? तैयारियां मतलब ऐसे था, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना आई वाज लाइक ये गाना भाई बहुत मजा आने वाला है करने में। और स्पेशली जो हुक लाइन है उसको डिजाइन करते वक्त मैंने 3-4 अलग अलग स्टेप्स भेजे, नहीं ये नहीं वो नहीं वो, देन अल्टीमेटली ये जैसी फर्स्ट टाइम किया अनुजा एंड उमेश ऑल्सो दे वर लाइक ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन फिर उससे किस तरह से आगे शूट करना है क्या है और बहुत मजा आया करते वक्त। एंड ये केमिस्ट्री तो ऑलरेडी जैसे ही फर्स्ट टेक लिया दोनों का एक साथ में, वो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे रिहर्सल में वो केमिस्ट्री बनती गई और वो टेक बाय टेक वो केमिस्ट्री अपने आप आती गई। मुझे सिर्फ बोलना था लेट्स स्टार्ट लेट्स डू इट, और वो बनते गए होते गए। अनुजा जी एज अ सिंगर आप ऑन बोर्ड है जी, गाने में फीचर भी कर रही है, तो अगर उस बारे में कुछ बताएं कि एज एन एक्टर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी या डिफिकल्ट था, एज अ सिंगर या एज अ एक्टर? नहीं था, मतलब आई डोंट, दोनों पार्ट इजी आई डोंट, डिफिकल्ट नहीं था, मतलब क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब वो गाना ही ऐसा है, चलो गाना अगर ऐसा ना भी होता, मानो कोई सैड सॉन्ग या कोई बहुत इंटेंस भी गाना होता, बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द फील। आप एक बात समझिए, जो जिस तरह से मैं इस चीज़ को देखती हूँ वो ये है कि मेरे लिए इट इज़ नॉट अ टेक्निकल थिंग एट ऑल। मे बी वो टेक्निकल नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती, मैं बहुत सोचती नहीं हूँ, बट इट हैज़ टू कम नेचुरली टू यू, इट हैज़ टू कम विद अ लॉट ऑफ फील। तो चाहे मैं गाऊँ उस समय वो भाव, वो एक्सप्रेशन, चाहे मैं डांस करूँ, चाहे आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम डांसिंग। आई एम नॉट अ डांसर दो, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत, मैं हंसते हंसते कुछ भी तो गलती भी होती है तो सामने देख लो ऐसे हंसते अच्छे स्वीट स्माइल से, तो सामने वाला भी ज़्यादा नहीं डांटता, कम डांट देता है। सो आई थिंक ईजी है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट द फील। इंटरप्ट करूंगा, कभी कभी ऐसा होता था रिहर्सल में, मैं बोलता थोड़ा रुक जाता है, नहीं एक और बार, शी इज सो हार्ड वर्किंग, लाइक लिटरली आई यूज्ड टू बी लाइक चलो थोड़ा रुक जाते हैं, शी वाज नहीं एक और बार करते हैं, एक और, वैसे करके 20 बार और कर ही लेंगे। लोगों ने स्क्रीन पर जो गाना देख लिया, अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप लोगों की आवाज। डेफिनेटली तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। बजवा शहनाई ना 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 ना, बजवा शहनाई ना 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 बजवा शहनाई। आखिर में गाना जो है कौन से चैनल पर रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप गाने को लेकर? पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये गाना एक ऐसे चैनल पे रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है। ऑफ कोर्स मेजर संजय is such a, he is the soul behind the channel, I should say, because but वो soul में इतनी spirituality है कि नाम ही इतना सुंदर है, कामाख्या म्यूजिक। एंड व्हेन इट इज अबाउट कामाख्या, इट्स लाइक हर एक इंसान उनकी स्पिरिचुअल पावर से रिलेट कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट ही फेल्ट दैट आई एम वर्दी इनफ टू बी साइंड एज एन आर्टिस्ट फॉर हिज चैनल। तो now I'm his artist, his channel's artist. तो आप ये गाना सुन सकते हैं on Kamakhya Music. And but before I say anything about Kamakhya Music, I would like him to say something about Kamakhya. You have said most of the things, and we need Goddess blessings, and I think so. Kamakhya is that, it is the goddess herself, and we want another goddess to be a part of it. Thank you. Thank you. Thank you so much.